Good evening. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So on this channel, we have lot of banking current affairs. I covered the banking current affair from July 20 for your benefit and created various playlists. And all these videos are available free of cost. Link of all these playlists is available in description box as well as comment column. Watch these videos. These will be very handy and helpful for your forthcoming main examinations. Now, since November, we could not cover current affairs on regular basis due to lot of pre-examinations. So some dates are pending in December and some in January. I am trying to cover up all these dates gradually, but the time limitation and my preoccupation is hindering the way. But still, I will try to cover entire banking current affair before your main examinations. That is my endeavor. Despite busy schedule today, I am making this video for you. So in this video, we will cover December 15 to December 21st. And with one more video, I will cover the December month, either tomorrow or day after tomorrow. Then we will concentrate on January. So the news is 8 of India's biggest banks have seen a significant jump in willful default. Very bad news for banking industry. So there is a jump of willful default by 37,000 crore in September quarter, and this is significantly in State Bank of India, Punjab National Bank, Bank of Baroda, Bank of India, Union Bank of India, ICICI Bank and Axis Bank. That means all top banks have seen this increase. Then another news is FDI growing continuously and the rise is 13% and it has reached $40 billions in April-September quarter. Another news is loan disbursement by NBFCs declined by 43%. Very whopping fall. Almost it has become half. Rupees 10,617 crore in September 2020. That shows the very weak economic conditions that is prevailing in the country. Then PNB has launched QIP of 7,000 crore. Union Bank raised 500 crores in the debt market. Bank credit grew by just 5.73%. Deposits grew by 11.34% for fortnight ending 6th December. Government of India is exploring option of bad bank. PNB raised 3,788 crore through QIP. That means 7,000 crore issue was not fully subscribed. They could only get 3,788 crore through QIP. Similarly, IDBI Bank raised 1,435 crore through QIP. Bank of Baroda completes integration of all branches of merged entities into it. So these are some significant news. If you watch few videos per day, you can easily cover the entire banking current affair for your forthcoming examinations. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. आपके इस चैनल पर जुलाई 20 से बैंकिंग करंट अफेयर की वीडियोस उपलब्ध है और ये सारी वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट है. इनकी प्लेलिस्ट है मंथ वाइज. जुलाई की अलग, अगस्त की अलग, सितंबर की अलग, अक्टूबर की अलग, नवंबर की अलग, दिसंबर की अलग. इनका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया. इन वीडियोस को आप देख लीजिए. नवंबर दिसंबर में हम थोड़ा सा बैंकिंग करंट अफेयर कवर नहीं कर पाए क्योंकि प्री एग्जामिनेशंस चल रही थी. फोकस वहां चला गया. अब हम इन डेट्स को ग्रेजुअली कवर कर रहे हैं.
आज के इस वीडियो में हम 15 से 21 दिसंबर कवर कर रहे हैं और 1 या 2 दिन में हम दिसंबर कंप्लीट कर लेंगे। फिर 3-4 वीडियो के अंदर हम जनवरी को कवर कर लेंगे और जो आपका फोर्थ कमिंग एग्ज़ाम है मेंस के, हमारी कोशिश होगी उससे पहले मैं आपको अप टू डेट ले आऊँ। इसके अंदर बहुत बिजी शेड्यूल चल रहा है, टाइम नहीं निकाल पा रहा हूँ, फिर भी मैंने ये इस वीडियो के लिए आज टाइम निकाला है ताकि आपका कोई नुकसान ना हो। तो आज की जो न्यूज़ है वो है कि जो 8 भारत के बड़े बैंक हैं उनमें सिग्निफिकेंट जंप आया है विलफुल डिफॉल्ट में इस क्वार्टर में। ये बुरी खबर है। 37,000 करोड़ के विलफुल डिफॉल्ट और बढ़ गए हैं और ये बैंक है स्टेट बैंक, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक एंड एक्सिस बैंक। दूसरी खबर है एफडीआई कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है इंडिया में। 13% की ग्रोथ है, $40 बिलियन पे पहुंच गया है अप्रैल टू सितंबर 2020 में। अच्छी खबर है। लोन डिसबर्समेंट बाय एनबीएफसी 43% से डिक्लाइन हुआ है सितंबर क्वार्टर में, सिर्फ 10,617 करोड़ डिसबर्स हुए हैं। ये इकोनॉमिक कंडीशन जो पतली है उसको दर्शाते हैं। पीएनबी ने लॉन्च किया है 7,000 करोड़ का क्यूआईपी। यूनियन बैंक ने 500 करोड़ रेज किया है डेट बॉन्ड्स के थ्रू। बैंक क्रेडिट में ग्रोथ आया है 5.73% का और डिपॉजिट्स में ग्रोथ हुई है 11.34% की फोर्टनाइट एंडिंग 6 दिसंबर को। बहुत ही कम इंक्रीज है क्रेडिट के अंदर। बहुत चिंता का विषय है बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए। गवर्नमेंट इज एक्सप्लोरिंग ऑप्शन ऑफ क्रिएशन ऑफ बैड बैंक। पीएनबी ने रेस किया है 3,788 करोड़ थ्रू क्यूआईपी। 7,000 करोड़ का इशू था, 3,788 करोड़ मिला, फुल्ली पैसा नहीं रेस कर पाए। आईडीबीआई बैंक ने रेस किया है 1,435 करोड़ क्यूआईपी के थ्रू। 2,000 करोड़ का लक्ष्य था, 1,435 करोड़ ही रेस कर पाए। बैंक ऑफ बड़ौदा ने कंप्लीट कर लिया है इंटीग्रेशन ऑफ ब्रांचेस का, जो बैंक्स उसमें मर्ज हुए थे। तो अब वो सारे बैंक फुल्ली इंटीग्रेट हो गए हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ। ये बैंक ऑफ बड़ौदा की सिग्निफिकेंट अचीवमेंट है। तो बैंकिंग करंट अफेयर आपके लिए बहुत ही अहम चीज़ है, बहुत इम्पॉर्टेंट रोल आपके अदा करता है। इन वीडियोस को आप देखिए, सारी वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट है, सेपरेट प्लेलिस्ट है। इसको आप एग्ज़ाम से पहले कवर करेंगे तो काफ़ी आप क्वेश्चन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके एग्ज़ाम में आए। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाकी डेट्स को हम ग्रेजुअली कवर कर लेंगे। गॉड ब्लेस यू।